إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله على كل شيء قدير. آج پلان یہ تھا میرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں کیا ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کیا تھا، اسے بیان کروں. لیکن ہندوستان کا ماحول اور میڈیا پہ کچھ گھومتی خبریں اس بات کا متقاضی تھے کہ میں اپنا موضوع آج یہ چنوں کہ انسان کے اندر بلند ہمتی کیسے پیدا ہوتی، بچوں کے اندر ہمت کہاں سے آتی، ایک مرد مومن یا ایک مومنہ خاتون اپنے اندر قوت یہ کہاں سے جمع کرتے ہیں، کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں. اول الہمتی یہ مومن کی صفت، مومنہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں. اور ہمت انسان کے اندر بچپن ہی سے تعلیم و تربیت سے آتی ہے. ماں باپ کا اس میں زیادہ دخل ہوتا ہے. چاہے تو اپنے بچے کو بزدل بنا دے، چاہے تو اپنے بچے کو بہادر بنا دے. اور اعلیٰ اور بلند خیال بچے کا ہو، یہ بھی ماں باپ ہی اس میں رہنما ہوتے ہیں. ایک مثال میں بیان کرتا ہوں پست ہمت کی. ایک باپ اور بیٹا دونوں کشکول لے کر گھومتے تھے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے، کھاتے تھے. ایک گاؤں میں کچھ زیادہ مل گیا تو وہاں سے جب چلے تو بیٹے نے کہا کہ ابا آج تو بہت زیادہ ہم لوگوں نے مانگ لیا، ایسے خوب محنت کرے، ہم لوگ خوب زیادہ مانگے. تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ پھر کیا کریں گے بیٹے؟ کہا کار خریدیں گے. کہا تو بہت بہتر خیال ہے میرے بیٹے کا. کہا بیٹے پھر کار پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ کہا پھر کار پر بیٹھ کر مانگیں گے. یہ پست ہمتی ہے کہ مانگ کر کے پیسہ اکٹھا کریں گے، اس سے کار خریدیں گے، اور کار پر بیٹھیں گے پھر بھی مانگیں گے. یہ بلند ہمتی نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ جس دن اس طرح پونجی اکٹھا ہو جائے کہ وہ کار خرید سکے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کریں گے، کوئی بڑی کمپنی بنائیں گے جس میں ہزاروں لوگ کام کریں گے، روزی روٹی کا مسئلہ لوگوں کے حل ہو جائے گا. کوئی سنستھا، کوئی جمگھٹا، کوئی مؤسسہ بنائیں گے جس علاقے کی پوری انسانیت کو راحت ملے گی. نہیں، پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، کار خریدیں گے، اور کار خرید کر کے پھر کار پر بیٹھ کر کے مانگیں گے. یہ پست ہمتی انسان. اور اگر آپ بچوں کو اعلیٰ ہمت کا بنانا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے پرورش کی. ذرا دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہے، کانچ کا گلاس ہے، دسترخوان پہ کھانے چنے ہوئے ہیں، کھاتے کھاتے بچے کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ کانچ کے گلاس کی طرف بڑھاتا ہے. ابا اماں دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، دادی اماں بیٹھی ہوئی ہیں، نانی بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے دیگر افراد بیٹھے ہوئے ہیں. فوراً کوئی بچے سے گلاس کو چھین لیتا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا. بچے کو اس تصرف سے روک دیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ سے پانی اٹھا کر کے نہیں پی سکتا. اب بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میرے اٹھانے کا سامان نہیں ہے، میں نہیں اٹھا سکتا اسے ابا اٹھائیں گے وہ پلائیں گے، امی اٹھائیں گی وہ پلائیں گی. آپ تصور کیجئے، اپنے بچے کی پرورش جب ہم اس انداز میں کریں گے، اور جب ہم بستر مرگ پر ہوں گے، بیمار ہوں گے، پانی اٹھا کر کون دے گا؟ بچے کے ذہن میں تو ہم نے ڈال دیا ہے کہ کانچ کا گلاس اگر آپ اٹھائیں گے تو توڑ ڈالیں گے. بچہ یہ سوچے گا ابو تو ایسے بیمار ہیں،
अम्मी बिस्तर पर तड़प रही हैं और कहीं प्याला भी टूट गया, गिलास भी टूट गया, फिर तो और घर के अंदर मसला पैदा हो जाएगा। लिहाजा बाप प्यासा दुनिया से चला जाए, माँ भी प्यासी दुनिया से चली जाए, बच्चा हिम्मत नहीं करता है कि कांच का गिलास उठा करके माँ बाप को पानी पिला सके। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने जहन में डाल दिया कि आप नहीं उठा सकते। नहीं, बच्चे को पढ़ने दीजिए, बच्चे को गिलास उठाने दीजिए, बच्चे के हुस्ने तसर्रुफ को देखिए कि कैसे पकड़ता है। आप देखेंगे कि उसके अंदर हुस्ने तसर्रुफ नहीं है तो गलत तरीके से पकड़ेगा और फिर गिलास गिर सकता है, टूट सकता है। उस गलत पकड़ने को आप देखिए कि सही कैसे पकड़ा जाए और बच्चा मुंह तक उठाकर ले कैसे जाए और बच्चा उस गिलास से घूंट ले कैसे, इस पर आप रिमार्क कीजिए और बच्चे को इस तरफ से आप रहनुमाई कीजिए। गिलास छूने से मत मना कीजिए। एक गिलास आप 20 रुपए में खरीदते हैं, अगर गिलास टूट जाता है फिर आप बच्चे को बतलाते हैं कि अगर आप ऐसे पकड़े होते तो नहीं टूटता, आप इस तरह से पकड़े होते तो हाथ से नहीं छूटता, आप दाएं हाथ से पकड़े होते, दाएं हाथ से पकड़ना सुन्नत है, बाएं हाथ में आमतौर पर ताकत कम होती है, आपको दाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। 20 रुपए का गिलास तोड़ देने के बाद एक बच्चे के अंदर हिम्मत पैदा हो जाए कि इलाके के सारे मरीजों को पानी पिला सके अपने हाथ से। 20 रुपए का नुकसान कोई नुकसान नहीं, मरीज माँ बाप को पानी पिला सके क्योंकि उसे गिलास पकड़ना आ गया है। इस तहजीब और सकाफत से वो अपने आप को सजा ले कि दाएं हाथ से पकड़ करके प्याला तब लोगों को देना है, बाएं हाथ से नहीं देना है। आपने 20 रुपए का खसारा किया, लेकिन दरअसल ये खसारा नहीं है, ये पूरी उम्मत का फायदा है और पूरी उम्मत के लिए इसमें लाभ है और बहाबूदी है और आपके बच्चे के लिए एक सकाफत और तहजीब का अनमोल हीरा गोया कि उसके जहन में आ गया और उसने खरीद लिया। तो हमारी और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एतमाद बच्चे को अपने नफ्स पर करने दीजिए, खुद एतमादी पैदा होने दीजिए। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप कुर्सी पर चढ़ नहीं सकते, आप उसे उठाकर दूसरी जगह ले नहीं सकते, छोटी सी गाड़ी लाए उसको आप चला नहीं सकते, उस पर आप बैठ नहीं सकते, उसे आप तोड़ देंगे, उसे आप ऐसा कर देंगे। बच्चा समझता है मैं कुछ करने के लायक नहीं, बड़े लोग करते, छोटे नहीं करते। अब ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उल्टे उसको डांटना शुरू करेंगे, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता, तुम्हें ये सलीका नहीं, तुम्हें वो सलीका नहीं। हालांकि तरबियत हमारे और आपकी तरफ से रही है और कमी हमारी और आपकी नहीं। लिहाजा बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होने दीजिए। थमा दीजिए आप पैसा बच्चे को, लो खरीदो, क्या खरीदोगे हिसाब हमें चाहिए। वहां पाएगा अल्लाह ताला को, जहां चाहेगा जब चाहेगा तो अल्लाह ताला को पाएगा। वइदा सअलता फलतसअलिल्लाह, और सुन प्यारे, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, देने के बाद वो नाराज नहीं होता। हम इंसानों की खासियत है कि देने के बाद दोबारा से हमारा हम नाराज हो जाते हैं। लेने वाले को हम कमतर समझने लगते हैं, लेने वाले को हम खराब समझने लगते हैं, उसे हम और आप रजील इंसान, खसीस इंसान समझने लगते हैं। पर अल्लाह देने के बावजूद खुश होता है और बंदे को नवाजता भी रहता है। मांगने से अल्लाह ताला राजी होता है, खुश होता है कि बंदा मेरा मांग रहा है। तो जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, उससे मांगने में हिकमत है कि कभी नाराज नहीं होता और तू मांगते मांगते उसका बरगुजीदा बंदा भी बन जाए। लोगों के सामने अगर तू अपने हाथ को फैलाएगा तेरे कस्कोल को तोड़ देंगे और पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर तेरी मजम्मत हो कि फला हमसे मांगने के लिए आए। तो मांगना है तो अल्लाह से मांग। वही दस्तानता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब कराने वक्त में तो अल्लाह से मदद तलब कर। उसके अंदर जो ताकत है पूरी दुनिया के अंदर किसी के अंदर नहीं। तो मदद मांगनी है तो अल्लाह से मदद मांग। ये छोटे से बच्चे को तालीम दी जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोचे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से, मिशकात नबूवत से। और देखिए वअल्लम, तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मुझे, माँ बाप भी बैठे हुए हैं, ध्यान देने की बात है। वअल्लम, और प्यारे जान ले, अन्नल उम्मत लौ इज्तमऊ, पूरी कायनात के लोग अगर इकट्ठा हो जाएं,
अला अन यनफऊका, कि तुझे कुछ फायदा पहुंचाएं। पूरी उम्मत के लोग, पूरी कायनात के लोग, बाद रिवायत में है पूरी खल्क, उम्मत ने पूरी खल्क, यानी इंसान के अलावा मखलूकात में दीगर चीजें भी तेरी मदद के लिए आ जाएं कि नफा पहुंचाएं। लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक, तो उतना ही नफा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। बस जिनों का पूरा ग्रुप आ जाए, इंसानों का पूरा ग्रुप आ जाए, भेड़ बकरी गाय भैंस ऊंट कीड़े मकोड़े सब आ जाए मदद करने के लिए, तो उतनी ही तुझे दे सकते हैं जितना अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से लिख दिया है। बस उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये अल्लाह की ताकत है और लोगों की ताकत है। और देखिए जरा, वलो इज्तमऊ अला अन यदुर्रूका, और सुन प्यारे, पूरे लोग अगर इकट्ठा हो जाए तुझे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, तेरे मर्डर के दर पे हो जाए कि इसको खत्म कर देना है, लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन, ये नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं मगर उतना कद कतबहु अल्लाहु अलैक, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए नुकसान लिख दिया है उतना ही वो तक पहुंचा सकेंगे, और कोई बाल बाका तेरा नहीं कर सकेगा। सारे लोग, किसी संगठन, किसी संस्था, किसी जमीयत जमात, किसी ग्रुप, किसी पार्टी के अंदर कौन सी ताकत है? यहाँ तो पूरी कायनात की बात की जा रही, पूरे चरिंद परिंदे, पूरे शजर हजर, पूरे चिनो इंस इकट्ठा हो जाए और नुकसान पहुंचाना चाहे एक छोटे से बच्चे को, उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ताला ने चाहा है। बस जिस दिन ये अकीदा हमारे और आपके बच्चे के जहन में मौजूद हो और हम और आप ये पौधा अपने बच्चे के जहन में लगा ले जाएं, बंदूक की गोलियों की सनसनाहट हो, तलवारों की झनकार हो, तोपों की गड़गड़ाहट हो और मिसाइलों और रॉकेटों की सनसनाहट हो, हमारे और आपके बच्चे को लरजना नहीं है। क्यों? क्योंकि जानता है कि हथियार कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लिखा है वही होगा, बस और कुछ। ये सब फेल हो जाएंगे, बेमाना हो जाएंगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बचाना चाहेगा, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो पूरी कायनात के लोग मिल करके हमारी तरफ से डिफेंस करें, हमारी तरफ से दिफाई पोजीशन में आ जाएं, तब भी मुझे नफा नहीं पहुंचा सकते, मुझे बचा नहीं सकते। काल कोठरी से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे गायब कर सकता है और किडनैप करा सकता है, मुझे कोई नहीं बचाने वाला। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से बच्चे को तलकीन की, जरा देखिए, रुफ़ियतिल क़लम, कलम जो लिखने वाले थे उठा लिए गए, तकदीर में जो लिखा था लिख लिया गया, वह जफ़्फ़तिस सुहुफ़, और जिस पर लिखा जा रहा था वो अब सूख चुका है। बंदों की पैदाइश, मखलूकात की पैदाइश के 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि हमारे लिए क्या होगा, अब बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, कहा उक्तुब लिख, तो कलम ने कहा मौला क्या लिखूं? कहा उक्तुब मकादीर अल खलाइक, तमाम मखलूकात के तकदीर को लिख। तो हमारे लिए क्या होगा, हमें नुकसान कहाँ होगा, हमें टेंशन कहाँ होगा, हमारी जिंदगी में मसाइब कहाँ आएंगे, हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारे किस बच्चे को क्या होगा, हमारे घराने के साथ क्या होगा, ये सब कुछ हमारी और आपकी पैदाइश के 50,000 साल पहले लिख दिया गया। फिर हमें और आपको डरना क्यों? फिर बंदूक की गोलियों की सनसनाहट और तलवारों की झनकार और घोड़ों की टाप से हमें लरसना नहीं है। जिस दिन हमारी बच्ची ये जान ले, जिस दिन हमारा बच्चा ये जान ले, हड़बंग मचाने वाले हड़बंग मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमें और आपको हिम्मत अल्लाह ताला देगा इस अकीदे की बुनियाद पर कि पूरी दुनिया देखती है। तो ये माँ बाप की तरफ से तरबियत होनी चाहिए बच्चों की, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ एक जुमला है, ये मुसनद अहमद बिन हंबल की रिवायत है जो मैंने पढ़ी है, 2721 पर मौजूद है। यहाँ एक जुमला है बहुत अहम, दूसरी रिवायात में मौजूद, वमा अख्ताअल अब्दु लम अब्दा लम यकुन लिसीबा। और देखो, गोली आपके सर से गुजर गई सनसनाते हुए, आपने कहा कि वाह वाह मैं बच गया। नहीं, उसे लगना ही नहीं था आपको,
वो आपकी तकदीर में लगना लिखा ही नहीं था, तब वो गोली आपके सर से गुजर गई और दूसरे लोग धड़ाधड़ गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं मार्का में, लेकिन आपके लिए मरना लिखा ही नहीं था, आपको तकलीफ पहुंचनी ही नहीं थी। इसी बात यहाँ कहा जा रहा है वमा अख्ताअल अब्दा लम यकुन युसीबा, और जो बंदे से गुजर गया, जो खता कर गया, वो बंदे को लगने वाला था ही नहीं। वमा असाबहु, और जो परेशानी बंदे को लाहिक हुई है, लम यकुन लियुख्तिया, वो उससे खता करने वाली चीज थी ही नहीं।